ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، خوبصورت اور مقبول ترین سٹیج اداکارہ قسمت بے کی تدفین کے بعد اس کی قبر 4.5 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ کیوں کھولی گئی اور وہاں موجود لوگوں نے کیا منظر دیکھا، اس سارے واقعے کی تفصیل آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گا۔ کوئی انسان گناہگار ہے یا نہیں، یہ صرف مالک کائنات ہی جانتا ہے۔ ہم لوگ کسی کے بھی اس دنیا سے جانے کے بعد مختلف قسم کی قیاس آرائیاں یا تبصرے کر کے اپنے گناہوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مرنے والوں کے متعلق کوئی بھی بات کرنے یا سوچنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچ لیا کریں کہ کہیں ہم نادانستگی میں بھی کوئی ایسی بات اپنے منہ سے تو نہیں نکال رہے جو آگے جا کر ہماری گرفت کا سامان بن جائے۔ میرے آج کے پروگرام کا موضوع بھی مختلف ہے اور یہ پروگرام بھی میرے اس ولاگ کو دیکھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فیصلوں پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ 2016 میں انتہائی شفاقانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دی جانے والی خوبصورت سٹیج فنکارہ قسمت بے کی موت کو 8 برس ہونے کو ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس حساب سے یہ دل خراش واقعہ گزرے کل کی ہی بات لگتی ہے۔ اپنے نام کی نسبت سے بدقسمت ثابت ہونے والی مظلوم اداکارہ کو جس انداز میں باقاعدہ پلاننگ کر کے موت کی نیند سلایا گیا، وہ اتنا شفاقانہ تھا کہ اس واقعے کی حقیقت جاننے والے لوگ لرز کر رہ گئے۔ پہلی بار میں اپنے اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قسمت بے کو کس طرح اور کیوں بربریت کا مظاہرہ کر کے قتل کیا گیا، اور ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے کہ اس کی قبر سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں اور مٹی کے اس ڈھیر سے ناقابل برداشت قسم کی بدبو اٹھتی رہی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ قسمت بے کے قتل کے بعد بھی کئی ولاگرز اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہے جن سے سنسنی پھیلے اور لوگ ان کے ولاگز دیکھ کر ان کے چینل کی ریٹنگ بڑھائیں۔ یہ ایک ایسا قابل مذمت اقدام ہے جس کو ہرگز سراہا نہیں جا سکتا۔ قسمت بے کا اصل نام ہنا جبین تھا۔ وہ لاہور میں ہی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کی فیملی گجرانوالہ شفٹ ہو گئی۔ گھر میں اس کی والدہ اور والد کے جھگڑوں کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف غربت تھی۔ اسی ماحول میں قسمت بے پروان چڑھتی رہی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس کے والد گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قسمت بیگ جوانی کی دہلیز پر پہنچی، جہاں اس کے سامنے اپنی فیملی کے دکھ تکلیفیں دور کرنے کا ایک بڑا چیلنج اس کا منتظر تھا۔ قریبی ملنے جلنے والوں کے مشورے سے قسمت بیگ نے تھیٹر کی دنیا کا رخ کیا۔ گوری چٹی رنگت اور قدرے چھوٹی مگر نشیلی آنکھوں کی وجہ سے اسے سٹیج ڈراموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ قسمت بیگ نے اپنا پہلا سٹیج ڈرامہ گجرانوالہ میں ہی کیا۔ قسمت اس پر مہربان ہوئی اور قلیل مدت کے دوران ہی وہ گجرانوالہ سٹیج کی ڈانسنگ کوئین بن گئی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے تھیٹر کا رخ کرنے لگی اور سٹیج پر انٹری ہوتے ہی تماشائی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اس کا تالیوں اور سیٹیوں کی گونج میں استقبال کرتے۔ قسمت بے کی عوامی مقبولیت کی دھوم لاہور تک پہنچی تو ہر پروڈیوسر کی خواہش تھی کہ وہ اس کے ڈرامے میں کام کرے۔ شہرت، مقبولیت اور دولت آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو قسمت بیگ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور آ گئی۔ یہاں ایک مثالی
बड़ी कामयाबी उसकी मुंतजिर थी। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि सिर्फ स्टेज ड्रामों से इतनी ज्यादा शोहरत हासिल करने वाली किस्मत बेग पाकिस्तान की पहली फनकारा थी। ड्रामा प्रोड्यूसर्स इसे बड़े बड़े नामों पर फोकियत देने लगे। किस्मत बेग ने घर वालों की ख्वाहिश पर शादी भी की, जिससे इसके 2 बेटे पैदा हुए, मगर खामद के साथ इख्तलाफ के बाद इसने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब इसकी जिंदगी में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले स्टेज प्रमोटर राना मुजम्मल की एंट्री हुई। इस दौलतमंद और बाअसर शख्स ने एक जुबानी मुआहदे के तहत किस्मत बेग से आसाइशों के बदले में इसका सारा वक्त खरीद लिया। शोबिस से ताल्लुक रखने की वजह से किस्मत बेग की शोहरत मुझ तक भी पहुंची। मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इससे मिलकर इसका इंटरव्यू करूं। बहुत भाग दौड़ के बाद मैंने किस्मत बेग का मोबाइल नंबर हासिल किया। अपनी फेसबुक वॉल पर मैंने अपनी पोइट्री के लिए किस्मत बेग की तस्वीर लगाना शुरू की। थिएटर की बहुत सी शख्सियात फेसबुक पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं। किसी न किसी तरह किस्मत बेग तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि मैं अपनी शायरी के साथ इसकी तस्वीरें लगाता हूं। जब फोन पर राब्ता हुआ तो मेरी उसके साथ अक्सर हल्की फुल्की गपशप रहने लगी। वो फैसलाबाद में स्टेज ड्रामा करने आई तो इसने मुझे मुलाकात के लिए बुलवाया, मगर मैं कोशिश के बावजूद वक्त नहीं निकाल पाया। मेरे दोस्त सहाफी किस्मत बेग से मिलने गए तो इनके हाथ भी मुझे पैगाम मिला कि मैं थिएटर में आकर उससे मिलूं, मगर मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि राना मुजम्मल और उसके गार्ड हर वक्त किस्मत बेग पर नजर रखते हैं और किसी को भी उनकी इजाजत के बिना किस्मत बेग से मुलाकात नहीं की जा सकती। मैं किसी भी बुखेड़े में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए थिएटर ना जाने का फैसला किया। यूं खुद अपनी और किस्मत बेग की ख्वाहिश के बावजूद हमारी मुलाकात ना हो सकी। बात कहीं से कहीं निकल गई। आपको बता रहा था कि किस्मत बेग पर नवाजिशात की बारिश करने वाले राना मुजम्मल ने इसे कोठी, कार और 2 वीगो डालों पर मुश्तमिल एक हफाजती दस्ता भी इसके साथ लगा रखा था, जिसका मकसद किस्मत बेग की हिफाजत करना कम और उस पर नजर रखना ज्यादा था। राना मुजम्मल के साथ किस्मत बेग की गुलामी का ये सिलसिला तकरीबन 7 साल तक चलता रहा। इस बाअसर शख्स की रखेल होने के बावजूद किस्मत बेग की कुर्बतें अली बट नामी शख्स के साथ बढ़ने लगीं और कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हो गए। किस्मत बेग ने अली बट को अपने सेक्रेटरी की हैसियत से साथ रखा हुआ था। इसी अली बट की वजह से राना मुजम्मल के साथ किस्मत बेग के इख्तलाफात शुरू हुए। राना मुजम्मल ने किस्मत बेग से अपनी दी हुई सारी मराहत वापस ले ली और इनके रास्ते भी जुदा हो गए। राना मुजम्मिल का एक करीबी दोस्त फैसलाबाद में अपने स्टेज ड्रामे के लिए किस्मत बेग को कास्ट करना चाहता था, मगर किस्मत बेग ने राना मुजम्मिल की फोन कॉल के जवाब में फैसलाबाद में ड्रामे के लिए आने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने किस्मत बेग को सबक सिखाने की धमकी देकर फोन बंद कर दिया। अपनी दी गई आसाइशों के बदले में राना मुजम्मिल किस्मत बेग के वजूद का मालिक बना रहा। उसने एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की को शहजादियों जैसा लाइफ स्टाइल दिया, मगर अब किस्मत बेग ने इसकी बात नहीं मानी तो वो इसकी जान का दुश्मन बन गया। इसी के हुक्म पर किराए के कातलों ने हरबंसपुरा में किस्मत बेग के घर की जानिब मुड़ने वाली सड़क पर स्पीड ब्रेकर के पास घात लगाकर उस वक्त किस्मत बेग की गाड़ी को रोक लिया जब वो तमासील थिएटर से ड्रामा करके रात के 3 बजे अली बट के साथ वापस आ रही थी। पहले तो गाड़ी पर फायर किए गए, जिनसे किस्मत बेग के बाजू पर गोली लगी और अली बट भी जख्मी हुआ। फिर किस्मत बेग को गाड़ी से बाहर निकालकर इसे लोहे के राड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब किस्मत बेग को अंदाजा हो गया कि हमलावर इसकी जान लेना चाहते हैं तो उसने अपने मासूम बच्चों के वास्ते दिए, अल्लाह और रसूल के नाम पर जान बख्शी के लिए मिन्नतें की, मगर हुक्म के गुलामों ने वही किया जो इन्हें कहा गया था। बहुत ही करीबी जराए बताते हैं कि खूनी दरिंदों ने किस्मत बेग को नीम बरहना करने के बाद उसकी टांगों के दरमियान नाजुक
आज़ा पर 12 गोलियां मारी जो इसके जिगर और फेफड़ों को छलनी कर गईं। अपनी तसल्ली करने के बाद मुल्जमान वहां से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज के बाद लोग घरों से निकल आए। शदीद जख्मी हालत में किस्मत बेग को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश भी की, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से वो जानबर ना हो सकी और अपने खालिके हकीकी से जा मिली। किस्मत बेग की जिंदगी का सफर खत्म हुआ तो पुलिस वजीर आला के हुक्म पर हरकत में आई। पुलिस की कार्रवाइयों के बाद इस कत्ल के ताने बाने फैसलाबाद से मिलने पर राना मुजम्मल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर कातलों को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। फूलों जैसी नाजुक शहजादी को शालामार के सामने बड़े मियां कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, जिसके बाद व्लॉगर्स ने झूठी और बेबुनियाद वीडियोस बनाकर अफवाह फैलाई कि किस्मत बेग की कब्र से चीखों की आवाजें आती हैं और इसकी कब्र से नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन उठ रहा है, मगर इस बात में कोई सदाकत नहीं थी। चंद माह के अंदर ही किस्मत बेग के वुरसा ने उसके कातलों के सरगना से भारी रकम के एवज सुलह कर ली और यूं ये केस हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपका ईमान ताजा कर देगी। किस्मत बेग की तदफीन के तकरीबन 4.5 माह बाद शदीद बारिशों की वजह से इसकी कब्र जमीन में धंस गई, जिसकी असर नौ तामीर के लिए इसकी कब्र को खोला गया। कब्र खोलने वाले गोरकन ने इंकशाफ किया कि 4.5 माह बाद भी यूं महसूस हो रहा था जैसे किस्मत बेग को अभी अभी कब्र में रखा गया है। इसका कफन तक मैला ना हुआ था और कब्र खोलने पर वहां से खुशबू आ रही थी। नौजवान गोरकन का कहना है कि कब्र खोलने पर ऐसा मंजर इसने पहली बार देखा था। इस मौके पर अली भट्ट और किस्मत बेग की फैमिली के लोग भी मौजूद थे। ये सादत मरने वालों को कम ही नसीब होती है जो किस्मत बेग के हिस्से में आई, और इसकी मैयत पर डाले गए फूल भी तरोताजा हालत में मौजूद थे। अपनी दादी और अपने वालिद के पहलू में दफन होने वाली किस्मत बेग की कब्र को अतराफ से पुख्ता करके इन कब्रों के गिर्द लोहे का जंगला बना दिया गया और दरवाजे पर ताला लगाया हुआ है, जिसकी चाबी इसके घर वालों के पास है। वो बाकायदगी से किस्मत बेग की कब्र पर आते हैं और तलावत करते हैं। किस्मत बेग अपनी जिंदगी में भी अपनी फैमिली के लिए दौलत कमाती और इनके मसले हल करती रही, और दुनिया से जाने के बाद भी इसकी वजह से इसके घर वालों को करोड़ों रुपए मिल गए। मेरी झूठ बोलकर व्लॉगर्स बनाने वालों से दरखास्त है वो ऐसा काम बंद कर दें। हमें भी इस दुनिया से अगले जहान जाना है और वहां हमें अपने अमाल का जवाब देना है, जो हर सूरत देना ही पड़ेगा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।